US-based banking firm, wherein I am leading their Hyderabad design team. Previously, wait, I'll go to the next slide before. So this is just a slide to have a glance at my journey, what I have been through. So this is on the top left, as you see. This is the place where I come from. So अगर कोई यूपी से है, if you know that there is a small town called Bareilly. Bareilly. There is I come from Bareilly. I did my schooling from Bareilly. I studied there. I have lived almost now 15 years. Starting के मतलब अभी भी I live there only, but because of work I have to live in different cities. So Bareilly is where my journey started, and this is also where my journey started. So if you guys can see on the left bottom, this is where I started. These two people were actually the founders of Abhishek as a product. So I actually come from here. Like every other person back then, I did my engineering with no idea कि क्या करना है, because everyone was doing it. So I also chose engineering and I went to Punjab. So I did my engineering in electronics and communication from Punjab Technical University, and spent 4 years there without any idea what I'll do. But I had like very much confidence that I'll get a job after engineering, which I did not. So confidence बहुत था कि job मिल जाएगी, मजा पैसे ही पैसे होंगे after I do all of this. But ऐसा कुछ हुआ नहीं. Nothing happened like that, and I was out of my college hunting for job. So I was sitting in a lot of off-campus drives. कहीं भी कुछ interview हो रहा है तो I was going, यही सब हो रहा था. So finally got one job. So in 2014 is when I graduated, and I got my first job with Wipro. So this was my very first job after graduation in 2014 only. मतलब 2-3 महीने बाद लग गई थी job as a network engineer. So I started as a network engineer with Wipro. Started working there, but left the job in 5 months. 5 महीने में ही छोड़ दिया because I was not liking it. मजा नहीं आ रहा था, and I was not even understanding कि करना क्या है वहाँ पे, right? So job छोड़ दिया, and I was in Delhi at that time. So after leaving the job, I was in Delhi with no money and nothing, and I also did not want to take money from my parents. So इसलिए I was like, let's find another job. So I started working with a BPO, a customer support center में. Worked there for again 5-6 months and left क्योंकि वो भी मजा नहीं आ रहा था. It was too hectic. Night shift होती थी and all of those things. So this kept on happening for almost 3 years. I think in 3 years I left five jobs. ठीक है, सब 5-5 महीने 6-6 महीने करके, because कोई भी पसंद नहीं आ रही थी. I was not liking any of the jobs that I was doing. And then finally I had the courage to go back home. So I went back home this time कि भाई घर वालों के पास कि थोड़े दिन, इतने सालों मेरे को पाला है आपने, फिर से पाल लो मुझे थोड़े टाइम. So I went back home to see what I can do. And that's when my parents told me that UPSC कर लो, because सब करते हैं, है ना. So and because I was at home, so I brought all the books and everything, सब कुछ, and started preparing. फॉर्म भी भरने स्टार्ट कर दिए, सब कुछ कर दिया. But I knew that I'm not that intelligent, I'm not that special कि I can crack UPSC या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स, because I am just like very average kid. So one of my friend told me, I was talking to him, so he told me कि there is something called UX design, and you can
see if you like it or not, मतलब try कर लो. So I started researching, I started exploring, I started looking at videos, all of those things. I even joined a small boot camp 3 months का to see कि क्या होता है. And like every other time I was playing that gamble कि अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर से छोड़ देंगे. But starting में I got interested a little bit because I was always into arts, I was always into the creative side, I was always into music. तो वो थोड़ा सा मतलब my brain had that creative side a little bit, so that inclination was there. So I started building my portfolio. I started looking for job, and I got my first design job in 2018. So 2018 I started working with Indian Council of Agricultural Research in New Delhi. If you guys are from Delhi, so you might know near Rajendra Place there is this Pusa campus of ICAR. So that was my office then, and I started working as a designer in a government organization. I was the only one designer there amongst all 20-25 developers. Started working there. This picture is from that job only, wherein we hosted Bill Gates for one of our international conference, and I had a chance to do all the branding work, all the websites, all the touch points for that particular event. I was working on a lot of government projects that were under ICAR, Ministry of Home Affairs. So, and that kept on. I did this for almost 2.5 years. And while in that job, I realized कि यार learning नहीं हो रहा है. I'm not learning anything new because since it was a government organization, they were not matured enough in design. You know how government websites are, government applications are. So then I started freelancing to just learn how to actually work with different people, talk to clients, all of those things. So started freelancing in 2019. Started getting few small gigs for very less money. This all started happening, and then COVID happened and we all went back home. During COVID only I realized कि अब तो काफी time हो गया है यहाँ पे. Let's try to find a new job because यहाँ पे actually ना learning हो रही है ना पैसा बढ़ रहा है, so it's all stagnant. That's when I started again building my portfolio, started interviewing. Almost I think applied for 400-500 companies, got shortlisted from like maybe just 20-25 companies only, and I think I had like 4 offers at the end after almost 5 months. Out of which one was Deloitte, so I chose to go with Deloitte because I thought it will be good to have like a good brand name on my resume, and also I will be actually getting to learn a lot in a very big organization, big brand, good team. So I joined Deloitte then, and that I was part of the brand experience team where we were taking care of Deloitte's brand experience from their main website, all the social media campaigns, sab kuch that comes under that brand experience. So this is all that happened, and while working at Deloitte, I started mentoring. So I always wanted like to share my experiences, not to teach anyone anything, but to just share what I have been through, because I was coming from a non-design background, and being a non-designer in design is a little tough. Now it's still better, but earlier back then it was even worse. So I thought ki if someone can actually get help from my journey, I'll be happy to do that. So I started mentoring and started getting recognized to ADP, all of those platforms. All of those things started happening, and with that journey, I thought, why not we have something that actually
helps us do it and amplify it better. So we started a community called Designland in 2024, wherein it's a community of designers from all disciplines, around 7,000 designers with us right now. So created a community to host a lot of events, meetups, workshops, all of those stuff, going to colleges, design colleges, non-design colleges, just to spread awareness around design. So Designland started, and with that, last year I left Deloitte, and recently, like 3 months back only, I joined Candescent as a lead designer. So that's my full-time job where I actually get paid from. And Designland is something that we do out of passion. So it's a community to host a lot of things. And I also work as a visiting faculty for interaction design at Strat School of Design. So it's in Bangalore, where I teach interaction design to year 2, year 3, year 4 students, and also take few workshops at MIT and all other design colleges, non-design colleges. Okay. So that has been a journey till now. But yes, again, I would need answers, because bina answers ke it won't go ahead, because I know as much as you guys know. Okay. So what is design? Any random answers, any random thought that comes to your mind when you hear design? So I just want to know. Design is problem solving. Design problem solving. So I think we'll go with problem solving as it is, because design is actually that. At the core of it, design is about problem solving. But let us look at some problem solving experiences, examples maybe. What if we were to use this? Or this. Or this. We all be sitting on this chair. अच्छा ये बता दो चलो. This one is easy. Always right it to Where are we as men, or you as men will go? ओके, तो इसमें क्या बताना था कि हम कौन से वाले में जाएंगे? हम तो मैन वाले में जाएंगे. बट उन्होंने लिखा है कि मैन टू द लेफ्ट आर ऑलवेज राइट. अच्छा, मैन टू द लेफ्ट बिकॉज ओके. हाँ, मतलब आइकन्स वाइज देखा जाए दोनों का सिंबल, तो वो अलग अलग यूज किया है ना. हाँ, ठीक है. यस, कंफ्यूजिंग है सब कुछ वर्ल्ड में. Can anyone tell me any problem here in this picture? White boards, black boards, मतलब ज़्यादा रखा हुआ है पहला तो, ठीक है. और वो अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, जिधर स्टूडेंट्स बैठेंगे अगर तो सेंटर में दिखेंगे, ठीक है. और सेंटर में भी है एक वैसे बोर्ड, वो बड़ा है. तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये हुआ कि मतलब दो जगह यूज करके रखा हुआ है बोर्ड्स वो. ओके, और कोई प्रॉब्लम किसी को भी कोई है? ओके, चलो. जाने के लिए रास्ता ही नहीं है. जाने के लिए रास्ता नहीं है.
हाँ मतलब है वैसे, ये बीच में ये ग्रे डार्क ग्रे स्ट्रिप दिख रहा है ना, तो बीच में तो है, इनके बीच में नहीं है, सीट्स के कम। बट एक और प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है बट है। चेयर के साथ तो कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि चेयर प्रॉपर दिख वो रहा है, लाइट पे के लिए जगह भी है, हैंड रखने के लिए जगह भी है। अच्छा, उधर क्या? छोटा सा लाइट है वो बोर्ड के पास। ये वाला? हाँ नहीं, अच्छा चेयर के साथ ही प्रॉब्लम है। अच्छा ऐसी बात। तो ये फिर फोल्डेबल नहीं होगा, मतलब बैठ सकता है स्टूडेंट, बट अचानक अगर उठने पे वो एक्सपीरियंस फिर काम नहीं कर रहा सही, तो ये होना चाहिए ऐसा कि वो फोल्डेबल होना चाहिए। इसको खींचेगा तो मतलब वो सीधा हो जाएगा, फिर मतलब जमेगा नहीं उसको लिखने को शायद। जमेगा। अच्छा तुम लोगों में से कोई लेफ्ट हैंडर है क्या? मैं हूँ। गुड तुम पॉइंट। आराम से लिख पाओगे इस पे? हाँ मतलब सीधा बैठ के? हाँ लेफ्ट, अगर मैं इसमें बैठूंगा तो हाँ लेफ्ट हैंडर सूट हो जाएगा मेरे को। वही एक छोटा सा प्रॉब्लम। ये राइट हैंडर नहीं लिख पाएगा। हाँ हाँ, ये क्या? सारा राइट हैंड वालों के लिए है, तो तुम वहाँ पे आराम से अपना हाथ लगा के लिख सकते हो। बट लेफ्ट से होगे तो तुमको अपना हाथ ऐसे हवा में डाल के ऐसे घूम के लिखना पड़ेगा। हाँ राइट? हाँ ये भी है पॉइंट है। सही तो है। ये छोटे सा प्रॉब्लम, बट बिकॉज कम है तो इधर बहुत कुछ हो रहा है, बट क्या खरीदना है पता नहीं चल रहा है। करेक्ट। और ये तो किसको अच्छा लगता है ये फीचर? बेकार फीचर है व्हाट्सएप का। नहीं व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर ठीक है। प्राइवेसी को लेके तो ठीक है, बट अगर हम यूजर लड़ते एक्सपीरियंस बेकार है। कोई भेजता है और फिर डिलीट कर देता है, कहते हैं भाई क्या डिलीट किया, लाइक क्यों? अगर भेजना ही नहीं था तो डिलीट क्यों कर रहे हो? मे डिलीट बी ही यूजर कर। एक्सपीरियंस भी सबसे खराब है, मगर लॉजिकली सही है। लॉजिकली ठीक है, यस, बट इसमें वही इंटेंशंस एंड लॉजिक्स को कंबाइन करना पड़ता है, बिकॉज वी एज डिजाइनर्स, तो अगर इंस्टाग्राम पे यू विल सी, तो इफ यू डिलीट अ मैसेज वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, राइट? अगर डिलीट हुआ है तो डिलीट हुआ है। मगर व्हाट्सएप इसके लिए तो जाना जाता है, अपने प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए, प्राइवेसी फीचर के लिए। हाँ प्राइवेसी इज गुड, मतलब डिलीट करने का ऑप्शन इज गुड, बट एज अ यूजर तुमको अच्छा लगता है व्हेन समवन सेंड्स यू अ टेक्स्ट एंड वो डिलीट कर देता है इमीडिएटली? गुस्सा आता है सबसे पहले कि नहीं आता है? मतलब एज अ यूजर मेरा रिएक्शन हमेशा वही होता है कि मतलब अगर डिलीट ही करना था तो भेजा क्यों था? एंड व्हाई एम आई गेटिंग नोटिफाइड मैसेज आने पे भी और मैसेज डिलीट होने पे भी? और एडिट का क्या बोलोगे, जो एडिट किसका? करते हैं, एडिट जो करते हैं? एडिट इज स्टिल बेटर देन दिस। नहीं इसमें भी वैसे वाटर मार्क लग जाता है ना? उसमें भी हाँ लग जाता है, राइट, बट उसका दैट इज कैसे बेटर कि हाँ देयर इज समथिंग दैट वाज कन्वेड, उसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ हो, बट डिलीटेड इज लाइक कि तुमको कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, राइट? डिलीटेड एडिटेड में तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, लाइक यू एज अ यूजर हाउ, अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, अगर हम मे बी गुस्सा भी नहीं बोल सकते हैं बट एंजाइटी बोल सकते हैं, छोटा टर्म, कि वी बिकम एंग्शियस, हम एकदम से हमारा बॉडी का वो टेम्परेचर इधर उधर होता है कि अरे ये क्या हुआ। एडिटेड में
it's on a very low scale. So, but yes, this is all design, and this is, matlab, that is why we as designer are there to make mistakes also and rectify mistakes also. है ना? So, us as designers, who are we? We are the problem solvers. हमें actually में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठाया है, बट नॉट फॉर दिस. As designers, what happens is when we actually are starting out, even if we are in very early years of our careers, मतलब early years का मतलब है 1 to 5 years or even 6 years, तब we have that understanding कि ठीक है, because I am a designer, I know everything and I should know everything. मेरे को सब आता भी है, मेरे को सब आना भी चाहिए. And that is where we make mistakes, right? So you guys have watched this movie? पहला सीन तो देखा ही है, right? So if I am as designer guiding someone, मेरा user plane उड़ा रहा है and I am guiding them invisibly, but I am not guiding them all the time. I am guiding them through my design. I experiences till now making mistakes. ये mistakes करके ही सीखा हूँ. I was not like an ideal designer and I am not an ideal designer till now. But whatever I have experienced, जो भी मैंने mistakes किए, जो भी गलतियाँ की है, based on that, you can share few things that are now helping me to actually become a better designer. ठीक है? So one is कि design means visuals, right? Whenever design is there in talks, हम लोगों को लगता है कि कुछ भी अच्छा दिखेगा तो that is design, right? It is there. It is one aspect. वो एक part है design का कि obviously visuals are something that will attract my user or anyone that sees. ठीक है? But it's not all about visual. Okay, as a designer, because we are not making just the UI. Okay, we are also responsible for the experience of it. So it's not just how it looks, but how it is functioning, how it is working. If I am able to go from one place to another without any hiccup, tab my design is working, right? If there is no problem for me to go from one place to another, no matter how beautiful or ugly it is. Again, you might have seen a lot of if you guys explore, you might have seen a lot of internal dashboards या फिर जो भी complex systems होते हैं that big organizations use. They are very very boring. वो इतना घटिया दिखते हैं कि you will see कि यार ये लोग तो इतना करोड़ों अरबों का कंपनी है and they cannot even have like great UI. The reason is because their requirement is not UI. Their goal is not UI. They just want to get the work done in the easiest way, right? So I'll tell you one very live example that I experienced. So I was creating a page for Deloitte ka website. So we were redesigning the entire website, and there is this article pages on the website. So there are some case studies that Deloitte publishes. So we thought ki, because it's very old website, we were redesigning it. So we thought ki let's make it very modern, let's make it very visually appealing. So we created
a new template wherein there was big landing image, a lot of small interactions happening, small scrolls पे इधर उधर. And after 3 months, when we saw the data, there was like at least 50% drop on the page visits. People were not, मतलब एक फोल्ड दो फोल्ड के बाद लोग नीचे ही नहीं जा रहे थे उस पेज पे. तो 25% स्क्रॉल के बाद लोग एग्जिट कर जा रहे थे पेज. एंड वी रियलाइज कि इससे पिछला वाला जो पेज था जो बहुत बोरिंग था वो पूरा लोग पढ़ के जा रहे हैं. एटलीस्ट 80% तक तो स्क्रॉल कर रहे हैं उसको. तो देन वी रियलाइज कि बिकॉज यूजर्स वहाँ पे पढ़ने आए एंड दे आर नॉट देयर टू सी हाउ कूल यू आर, है ना. एंड वो ऑडियंस इज वेरी डिफरेंट. दे आर बिजी लीडर्स या फिर एग्जीक्यूटिव्स इन टॉप कंपनीज या फिर कुछ लोग रिसर्च करने आ रहे हैं. तो उनके लिए वो विजुअल इन एनिमेशंस they does not matter to them, है ना. So we had to change the entire design. उसको वापस वाले पे नहीं ले गए, but we changed, reduced a lot of things, make it very minimal, to the point. तब वो चला. So yes, next is solving problems. We talked about design being problem solving and designers solving problem, but that is the mistakes that a lot of us make. We try to solve the problem, right? But you might be thinking कि भाई यही तो करने आए हैं, मतलब अभी बोलोगे कि सॉल्व करना है प्रॉब्लम, फिर बोलोगे कि सॉल्व नहीं करना है प्रॉब्लम. सॉल्व करना है प्रॉब्लम, बट तुरंत नहीं करना है. वी डोंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी जस्ट जंप ऑन टू द सोल्यूशन. हमें क्या लगता है कि कुछ भी ब्रीफ आया, इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, वी ऑलरेडी नो द आंसर. इवन बिफोर थिंकिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, वी नो कि अरे यही सोल्यूशन होगा और बना देते हैं. And that is where we make a lot of mistakes. If, like for example, if we are in some sort of fast-paced environment, we might have less time to think about or research on the problem. But still, even within that crunch, अपने को first is like we have to understand the problem. अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा, वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इन अ बेटर वे. सोल्यूशन तो होगा, राइट, बट इट माइट नॉट बी एन इनोवेशन. ठीक है. तो देयर इज दिस स्टोरी, इफ यू गाइस माइट हैव हर्ड या और नॉट, फोर्ड का. सो आई थिंक व्हेन फोर्ड लॉन्च्ड देयर कार्स बहुत टाइम पहले, सो द owner Henry Ford, so he had this quote कि अगर if I had to solve just my users problems, तो मैंने वो उस टाइम लोगों के पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या था, केवल घोड़े थे और अदर एनिमल्स. ठीक है, कार तो पिक्चर में ही नहीं था, राइट. तो he said कि अगर मैं वही सोचता तो मैं शायद और तेज दौड़ने वाले घोड़ों पे काम करता, राइट. बट बिकॉज ही अंडरस्टूड की प्रॉब्लम क्या है एंड हाउ आई कैन मे बी एफिशिएंटली सॉल्व इट, दे इन्वेंटेड कार्स. ठीक है. तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यस, वी हैव टू सॉल्व इट, बट प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग शुड बी लाइक आवर गोल फर्स्ट. भाई पहले हम अपना 70 to 80% टाइम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने में लगा रहे हैं, with different perspective, with different approaches, and then we come on to the solution. Again, another thing that we make mistakes around is overvaluing tools. Again, tools are definitely there to help us do it. Okay, but
it will be your mindset in the long run. So there are two things, one is job and another one is career. ठीक है. So what I did in my first 3 years after college was trying to get a job. ठीक है. बट मैंने कभी करियर के बारे में नहीं सोचा था. मेरा ये था कि कोई भी जॉब मिल जाए, पैसा आ जाएगा एंड काम चल जाएगा. बट काम नहीं चला. राइट. अगर मैं कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव या फिर कहीं भी कॉल सेंटर में बीपीओ में लगा रहता तो वो जॉब रहता मेरे पास, बट मे बी एक पॉइंट के बाद आके वो बिकॉज स्टैग्नेंट हो जाता है एंड आई वुड नॉट हैव एनी स्कोप टू ग्रो. तो टू मेक अ करियर you have to undervalue, not even undervalue, just value utna jitna required hai, the tools, but your mindset is something that will take you ahead always. So when I started in design, I started with Sketch. तो Sketch था to create interfaces, right? उससे पहले लोग Photoshop पे UI बनाते थे. फिर उसके बाद XD आया, XD पे बनाया, फिर XD भी बंद हो गया, अभी फिग्मा चल रहा है. राइट. फिग्मा भी खत्म हो जाएगा किसी दिन, क्या पता, वी डोंट नो. देयर आर अ लॉट ऑफ AI टूल्स that are giving you interfaces. ठीक है. तो मे बी देयर इज सम अदर टूल दैट कम्स इनटू पिक्चर कभी. तो टूल्स विल कम एंड गो, बट इफ यू हैव दैट माइंडसेट, इफ यू नो कि यार आई कैन यूज दिस टूल टू दिस पर्पस, so that will help you sustain in your career. तब you can actually have that long run कि भाई हाँ, because दिमाग is always above everything. Tools आते रहेंगे, tools तो you will spend 1 month and you will learn a new tool. ठीक है. But your thinking, how you think, how you solve problem, how you understand problem, how you research, how you approach, all of these things will always be above any tool, because tool को use कौन करेगा, अपन ही तो करेंगे. So another thing is getting attached not to your partners, girlfriends, boyfriends, but to your design. ठीक है. Never get attached to what you are creating, and it is why because everything that we do is for a certain purpose. ठीक है. and हम अकेले अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं. right. we are not artists. the difference between artist and designer is this only कि artist creates for themselves, है ना, even for some other people also, but they have full control over it. उनको कोई business purpose solve नहीं करना. right. they don't have to solve any business purpose, but we as designers we have a lot of things. हमारा users है, business है, all of those things are there in picture. So we have to be very much above our designs. कि कभी क्या होता है कि people get offended if you critique their designs. ठीक है. they are like कि अरे मेरा डिजाइन बेस्ट है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. right. so never get attached to your design if you actually want to go a long way. ठीक है. because आगे जाओगे, when you will be working with a lot of people, not everyone is sensible, not everyone is sensitive, not everyone knows how to give feedback. ठीक है. कोई तो यही बोल देगा कि यार ये तो घटिया डिजाइन है, उसको भी नहीं पता है कि ये घटिया क्यों है, बट वो बोल जाएगा. एंड इफ आई एम अटैच्ड टू दैट आई विल फील हर्ट. फिर होगा कि अरे यार ये तो बहुत ही खराब जगह है, लेट्स लीव. So to avoid all of this, not get attached. Another thing is taking inspiration, but so taking inspiration is fine, but copying something is not fine. ठीक है. So take inspiration ऐसे कि okay, for this purpose maybe this can help, so I'm trying. ऐसा नहीं है कि हमें को कुछ चाहिए and I just copy pasted it from somewhere else, है ना, because
इफ यू विल थिंक एक्चुअली, उन लोगों का कुछ पर्पस अलग हो सकता है, मेरा पर्पस कुछ अलग हो सकता है, मेरे प्रोडक्ट के गोल्स कुछ अलग हो सकते हैं, उनके प्रोडक्ट के गोल्स कुछ अलग हो सकते हैं. बट यस, इंस्पिरेशन, taking inspiration is fine, but actually just copying it might not work. So if you see all of those things that we use abhi in our products, interfaces, applications, website, are inspiration from some place or the other, right? Toggle button kahan se aaya hai? The toggle button is from the switches that we use, है ना. हम पंखा ऑन या बंद करते हैं तो there is this on and off का concept, है ना, which was way before the digital thing came in. So the designers used that mental model कि अरे people are used to change thing from here, तो on off करने का system है. इसका मतलब let's take inspiration from them because it will be easier for users also to understand कि अरे अगर ऐसा कुछ बटन दिख रहा है तो ये on off करने का है, right? So taking inspiration is fine and actually useful, but एकदम copy कर देना, it's not very much advisable. And one very important thing, कि ignoring non-design skills. We as designers have like our own egos, so we think कि ठीक है मेरे को design आता है तो that is more than enough. But once you will start working in big environments with other people, you'll realize कि other things are also necessary, because you just don't want to restrict yourself to a small shell. ठीक है, मतलब there is so much to uncover. So non-design skills like business, ठीक है, we design की ठीक है, we have to just create a screen और दे देना है, but understanding कि why it is required, वो business पे कैसे affect कर रही है. So you might have seen lot of people talking कि भाई मेरे इस एक change की वजह से इतना revenue बढ़ गया. So that understanding you'll have to have. ठीक है, your soft skills, how you communicate, very very important. How you actually work with other people, very important. How you understand other people's work. So there is always a debate कि भाई कोडिंग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. आना नहीं चाहिए, दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट. यू शुड नॉट बी लाइक कि यार अगर कोडिंग नहीं आएगा तो आई विल नॉट बी एबल टू वर्क एज अ डिजाइनर. दैट इज नॉट ट्रू. बट इफ यू नो, इट विल हेल्प यू ओनली टू अंडरस्टैंड. सो इनिशियली व्हेन आई एंटर्ड इन डिजाइन, आई ऑल्सो हैड लाइक कि आई विल नेवर डू कोडिंग बिकॉज आई हेट कोडिंग. ठीक है, एंड आई हैड दिस इन माइंड कि कभी जिंदगी में मैं कोडिंग नहीं करूंगा. ठीक है, कितना भी कोई मुझे बोल दे. बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय डेवलपर्स, उनको हमेशा होता था कि यार अरे ये कैसे बनेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं है, वो है. फिर देन इट आई रियलाइज कि अरे यार रुको, लेट मी ओनली फिगर आउट अ वे टू डिजाइन एंड डेवलप वट एवर आई एम थिंकिंग. तो मैंने हल्के हल्के ऐसी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख लिया जस्ट फॉर फन. And when I learned that, I realized कि अरे so much easier for me to now explain it to them. तो मैं बताता था कि नहीं, यहाँ पे तुम इतने कॉलम में ये लो, या यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरी यूज कर लो, यहाँ पे ये वाला टैग यूज कर लो. So it made my life easier only. It's not a requirement, but it's definitely an advantage. ठीक है. So all of those non-design skills, business, management, code maybe, or whatever you think कि is required, learn that. ठीक है, never ignore. And the very last one is getting ready. तो हमेशा यही सोचना कि यार जब ready होगा then only I'll be able to go out and about. ठीक है, तो waiting for that right time. I used to do that कि मेरा अभी portfolio ready नहीं है, जब ये इस level पे पहुंच जाएगा तब I'll start applying. ठीक है, जब ये एकदम इतना रिफाइंड हो जाएगा तब आई विल स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब. या फिर जब मेरे इतना सो एंड सो नंबर्स हो जाएंगे देन ओनली आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. तो गेटिंग रेडी इज like definitely not very advisable.
जो है अभी उसी के साथ शुरू करो, राइट. आई टिल नाउ आई डोंट हैव लाइक अ प्रॉपर पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, एंड इट्स बीन 8 years, 8 साल हो गए मुझे. तो अभी तक मेरा प्रॉपर पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है, बट जो भी होता था आई जस्ट यूज टू, एक पीडीएफ का लिंक भी है तो आई यूज टू जस्ट सेंड इट एंड अप्लाई थ्रू इट, ठीक है, एटलीस्ट 0 से तो अच्छा ही है, राइट. एंड विद दैट ऑल्सो आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ कॉल्स. तो वो राइट मोमेंट के लिए वेट करना इज नॉट वेरी मच एडवाइजेबल, ठीक है. तो ऑल गुड टिल नाउ, आर यू गाइज अवेक? हाँ. तो मूवीज कौन कौन देखता है? मैं कौन से सभी कौन से? सभी सभी देखते हैं मूवीज. सभी देखते हैं. मैं एनिमे कोई- देखता हूँ, एनिमे. एनिमे, वेरी नाइस. फेवरेट एनिमे कौन सा है यार? मैं वैसे बहुत कम ही देखा है मैंने एनिमे, बट एनी फेवरेट मूवीज? I want to eat your pancreas. आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास. बॉलीवुड मूवीज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. क्या आवाज वैसा हो गया थोड़ा यार? बॉलीवुड मूवी ज्यादा बढ़िया है. बॉलीवुड तो एनी बेस्ट. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान. नाइस. डीमन स्लेयर, नाइस. यस. तो फेवरेट जॉनर कोई सा? क्या क्या? मुझे हॉरर मूवी पसंद है और- ज्यादा, और फेवरेट मूवी कॉन्जरिंग का पूरा, मतलब ठीक है. जॉनर मतलब क्या होता है? मतलब कौन से टाइप का, जैसे कॉमेडी है, हॉरर है, रोमांटिक अच्छा. मूवी है, या फिर थ्रिलर है, ऐसा? मेरे को फैंटेसीज पसंद है, इसेकाई वाले ओके, बढ़िया. और रोम कॉम. रोम-कॉम बढ़िया. मेरे को कॉमेडी मूवीज तो बहुत पसंद है, मतलब पुरानी कॉमेडी मूवीज. अभी तो नए में तो कुछ अच्छा नहीं आता है, बट तो नाउ एक और क्वेश्चन है कि तरीके कर लेते हैं, चलो. व्हाई डू वी लाइक अ सर्टेन मूवी? कोई मूवी है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हेरा फेरी है. हेरा फेरी तो आई थिंक मोस्टली सबने देखी होगी, है ना? या फिर कोई और सी भी ले सकते हैं, कोई सी भी मूवी है. व्हाई डू वी लाइक इट? तो इवन बिफोर वी वॉच अ मूवी हम उसको क्यों पसंद करते हैं? अगर अभी लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि धुरंधर का सेकंड पार्ट आने वाला है, राइट, मार्च में. तो धुरंधर का फर्स्ट पार्ट आया था, एंड बिफोर इवन इट वाज लॉन्च्ड वी न्यू कि ठीक है वो आने वाला है. उसका मे बी ट्रेलर देखा था, या इवन ट्रेलर देखने से पहले से देयर इज अ टीजर या कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है कि चलो धुरंधर आने वाली है, राइट. तो क्या रीजन है, मतलब क्या रीजन होता है कि यार ये वाली मूवी अपने को हॉल में जाके देखनी है, या ये वाली मूवी देखनी ही देखनी है? मैंने डीमन स्लेयर से देखी थी. मतलब एक तो जैसे एक्सपीरियंस हो सकता है कि धुरंधर का पार्ट 1 मूवी हाइप में था, और एक्टर है जो कि धमाकेदार बनाया, प्लस रियल स्टोरी बेस्ड है, तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, ये हो सकता है. मतलब अब अगर आई हैव टू समराइज या फिर जस्ट पुट डाउन कि अपन मूवी देखने क्यों जाते हैं, सबसे पहले तो उसका ट्रेलर आता है, राइट. तो ट्रेलर से हमें कुछ आइडिया मिलता है कि यार शायद ऐसा ऐसा मूवी होगा, है ना, ऐसा ऐसा स्टोरी होगा. तो उससे लाइक ट्रेलर इज समथिंग दैट गिव्स अस एन आइडिया कि भाई अभी ये मूवीज में जाऊंगा मैं अगर देखने, तो ऐसा ऐसा कुछ मेरे को मिलेगा देखने. तो उसमें एक्शन होता है, तो भाई एक्शन से
भी हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, या फिर कॉमेडी कुछ होती है तो वो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड इज, तो ट्रेलर में एक तो स्टोरी, यार इसका स्टोरी मस्त होगा शायद, तो हम देखने जाएंगे। सेकंड इज द एक्टर एक्ट्रेसेस, यार इसमें रणबीर कपूर है या रणवीर सिंह है या दीपिका पादुकोण है या फिर कोई भी है, तो अगर वो है, या फिर फॉर एग्जांपल शाहरुख खान का मूवी आ रहा है, तो इफ आई लाइक शाहरुख खान, तो मैं तो स्टोरी भी नहीं देखूंगा, मुझे लगेगा कि यार शाहरुख खान का मूवी है, देखना ही पड़ेगा, राइट। सिमिलरली जैसे सलमान खान है, सलमान खान का कुछ भी स्टोरी है कोई फर्क नहीं है, बट ये है कि हाँ सलमान भाई का मूवी है तो जाना पड़ेगा, राइट। तो आइदर इट्स द स्टोरी, आइदर इट्स द कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर, है ना। तो दोनों, ये दो चीजें। उसके बाद कई बार होता है कि कोई डायरेक्टर है, लाइक फॉर एग्जांपल राजामौली है, अगर हमें पता है कि भाई इसने बाहुबली ऐसा बनाया था, तो अब अगर ये कोई और मूवी बना रहा है, जैसे कुछ उसका शायद वाराणसी आ रहा है, तो अपने को पता रहेगा कि अरे यार राजामौली बना रहा है, वो इस टाइप की मूवी बनाता है, मजा आ जाएगा, राइट। या फिर जैसे क्रिस्टोफर नोलन है, तो वी नो कि अरे भाई क्रिस्टोफर नोलन तो इस तरीके की खतरनाक मूवीज बनाता है, तो ये भी अच्छी होगी, देखने जाएंगे, राइट। मेजर थिंग्स यही होते हैं। सो नाउ कमिंग बैक अपना डिजाइन पोर्टफोलियो पे, इट्स वेरी सिमिलर, सेम तो नहीं बट सिमिलर। तो अपना जो पोर्टफोलियो है या फिर व्हाटएवर इज आउटसाइड, बिकॉज उधर जो रिक्रूटर है या फिर जो भी हायर कर रहा है उसको नहीं पता कि तुम कौन, उसको क्या पता कि अभिषेक कौन है, राइट। तो अभिषेक ने क्या किया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है दिखाने के लिए कि अभिषेक कौन है, राइट। उस लिंक पे जब मैं जाऊंगा एज अ रिक्रूटर, तो मैं खोलूंगा, मैं उसको जल्दी से ऐसे देखूंगा, स्कैन करूंगा, मुझे समझ में आएगा तो ठीक है, मैं कॉल करूंगा, नहीं तो स्किप कर दूंगा, राइट। तो नाउ दैट पोर्टफोलियो इज योर ट्रेलर, ठीक है। तो वो जो ट्रेलर है वो हमें जॉब लैंड कराएगा या जॉब लैंड नहीं कराएगा, सिंपल, मतलब कॉल आएगी या नहीं आएगी। तो वो अगर उसमें इतना अट्रैक्टिवनेस है तो होगा। तो सिमिलरली अभी जैसा हम बोल रहे थे ना कि मूवीज में या तो स्टोरी होगी, या तो कैरेक्टर होंगे, या डायरेक्टर होगा। इन रीजंस की वजह से मैं मूवी देखने जाऊंगा। तो सिमिलरली वो बंदा हमसे इंटरव्यू के लिए बात क्यों करेगा, आइदर मेरा काम अच्छा है, तो माय काम इज माय स्टोरी, ठीक है, आइदर माय स्टोरी इज गुड, आइदर कैरेक्टर, तो फॉर माय मूवी आई एम द मेन कैरेक्टर, मैं अपनी मूवी का मैं मेन कैरेक्टर हूँ, राइट। मैं डिजाइनर हूँ तो मैं ही हायर होने वाला हूँ, तो आई एम द मेन कैरेक्टर। तो या तो मैं बहुत खतरनाक हूँ, अब भाई अगर मेरे नाम से ही कोई पहचान लेगा कि अरे अभिषेक, इसको तो मैं ऐसे ही हायर कर लूंगा, है ना, काम कैसा भी हो, मुझे पता है इसका काम अच्छा होगा, राइट। इधर ऐसा हो। तीसरी चीज है डायरेक्टर पार्ट इज नथिंग, जस्ट कि हमने क्या क्या काम किया है, राइट। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड का टैग लग जाता है, लाइक अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मेरा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगा कि अरे यार ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है बंदा, ठीक होगा, राइट। तो ले सकते हैं, मतलब एटलीस्ट चांस तो दे ही सकते हैं। या फिर लाइक डेलॉयट में काम करके आया तो ठीक है भाई, चलो ट्राई कर सकते हैं। तो या तो स्टोरी बढ़िया हो, तुम्हारा काम अच्छा हो, या फिर तुम्हारा उतना क्रेडिबिलिटी हो ऑलरेडी, या फिर तुम्हारे पास वैसा कुछ टैग्स हो, मतलब या तो फिर भाई किसी इंस्टीट्यूट का टैग है, किसी कंपनी का टैग है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अच्छी होगी तो चलेगा, राइट। तो अगर अपने पास कोई IIT NID का टैग नहीं है तो अपने को खुद का क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है। अगर खुद का क्रेडिबिलिटी उतना नहीं है तो अपने काम का क्रेडिबिलिटी बढ़ाना, ठीक है। बट काम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अपना मूवी हाउ डू वी डिजाइन इट,
वेरी फ्यू सिंपल स्टेप्स कि पोर्टफोलियो और अपने केस स्टडी का क्या स्टोरी रहेगा, ठीक है। सो हर मूवी में ओपनिंग सीन रहता है, राइट, विच इज इन आर सिनेरियो, जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने केस स्टडी में हमारा ओपनिंग सीन रहेगा डेफिनेटली टू सेट द कॉन्टेक्स्ट कि भाई चलो ठीक है, ये हीरो है, और फॉर एग्जांपल कोई भी ये लव स्टोरी होने वाली है, राइट। फिर हमारे कैरेक्टर्स आते हैं कि भाई जैसे मुंबई में यहाँ का शॉट चल रहा है, एंड देन वी कम ऑन टू द कैरेक्टर रिवील कि भाई इस मूवी के पात्र कौन कौन है ना, विच इज अस, एंड इफ देयर इज अ टीम तो हमारी टीम, ठीक है। तब हम खुद को या बाकी के लोगों को इंट्रोड्यूस कराते कि भाई ये लोग हैं, अब ये है एक्टर, ये है एक्ट्रेस, एंड अब इनकी लव स्टोरी चलने वाली है, राइट। देन द स्टोरी हैपेंस, जो हमारा प्रोसेस है, जो इंटायर जर्नी दैट वी हैव फॉलोड वन बाय वन, वी लुक इनटू दैट, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम अक्सर भूल जाते हैं इन आर केस स्टडीज और आर पोर्टफोलियो आर द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। बिना प्रॉब्लम के तो कुछ भी नहीं होता, राइट। अगर कोई लव स्टोरी भी है तो उसमें या तो लड़की का बाप नहीं मानेगा, या फिर लड़की का दूसरा लव स्टोरी होगा, या फिर लड़के के घर वाले नहीं मानेंगे। तो ऑल द कंस्ट्रेंट्स विच आर एक्चुअली चैलेंजेस, है ना, तो वी हैव टू शोकेस दैट, वो बहुत ज़रूरी है। इट्स नहीं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही हैप्पी स्टोरी है कि भाई दो लोग मिले और उनका शादी हो गया, तो मज़ा ही नहीं आएगा, राइट। अगर अपन कोई मूवी देखने जाते हैं, अगर पहले ही सीन में हीरो ने विलन को मार दिया, हालांकि मार सकता है, बट उसके बाद भी अगर हम वो बीच का स्टोरी नहीं दिखाएंगे, खाली मार के दी एंड लिख दिया, तो हम गाली दे के आएंगे कि भाई क्या दिखा दिया ये, राइट। द क्लाइमैक्स ऑब्वियसली कि भाई क्या आउटकम हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ, जो भी हमने फाइनल डिजाइन बनाया, शादी हो गई कि नहीं हो गई, है ना, हीरो को हीरोइन मिली कि नहीं मिली, द क्लाइमैक्स। फिर कंक्लूडिंग, जो भी हमने सीखा कि भाई ठीक है ये सब हो गया, एंड वी लर्न सो एंड सो फ्रॉम आवर जर्नी, बिकॉज हमारे केस में क्या है, इट्स नॉट स्टॉपिंग देयर, ठीक है। डिजाइन है आइटरेटिव प्रोसेस। जब भी कोई मूवी का सीक्वल आने वाला होता है, उधर कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन रहते हैं, या फिर उधर कुछ एक क्लिफ हैंगर रहता है, राइट, अभी तक इधर था, अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो वो चलेगा, ठीक है। तो केस स्टडीज के लिए लेट्स लुक एट वन वेरी स्मॉल फ्रेमवर्क जो हम मोस्टली कॉर्पोरेट्स में प्रेफर करते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड मिंटो पिरामिड। अगर लोगों ने सुना है वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ ऐसा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स जस्ट कि हम उसको अपने अगर केस स्टडी बना रहे हैं, जो भी हमने जो भी सारी चीजें देखी उसको हम स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉप ऑफ पिरामिड इज कि हम शुरू करते हैं की आउटकम्स या कंक्लूजन से। ये थोड़ा उल्टा तरीका है टू शोकेस इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम कंक्लूजन पहले दिखाते हैं कि भाई इस प्रोसेस में हमने ये अचीव किया है ऑलरेडी, ठीक है, ये प्रॉब्लम था, ये सोल्यूशन है, और फिर उस सोल्यूशन का हम प्रोसेस दिखाते हैं कि भाई इस चीज़ों की हमने रिसर्च करा, ये डिटेल्स हैं, ये इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ चीज़ें वो फ्लो होके, एंड देन इट अगेन कम बैक टू द की आउटकम। तो जनरली इन कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइजेशंस में ये मिंटो पिरामिड फॉलो होता है। इट्स वेरी इजी वे टू प्रेजेंट ऑल्सो, बहुत आसानी से तुम समझा भी सकते हो, तो जनरली ये यूज़ करते हैं। तो केस स्टडीज़ में यूज़ करना बहुत ही सही है ये, एंड आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑल्सो इसके बाद कि वो कैसे रहते हैं, ठीक है। सो स्मॉल चेकलिस्ट जो अभी हम लोग देखे थे कि प्रॉब्लम है, कॉन्टेक्स्ट है, रोल्स डिफाइंड है, वी हैव द प्रोसेस विच इज़ बैक्ड बाय डेटा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रोसेस फॉलो किया है एंड वी डोंट हैव डेटा टू सपोर्ट। कंसिस्टेंसी विजुअली, ऑब्वियसली विजुअल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
सारे सेक्शंस कैसे एक के बाद एक स्टोरी में फ्लो हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर इम्पैक्ट इज ऑलवेज देयर कि अगर कुछ आउटकम आ रहा है तो वो कितना इम्पैक्ट कर रहा है, बिकॉज उसके बिना हाउ विल वी शोकेस कि इसका कुछ फायदा हुआ भी कि नहीं हुआ, राइट। फिर रिफ्लेक्शंस, लर्निंग्स, जो भी हमने सीखा, whatever we learned throughout the process, it's very important to showcase that. And one very small but very important thing कि कोई भी grammatical error नहीं होनी चाहिए। 15, 20, 30 सेकेंड में how will you be able to introduce yourself, तुम अपना introduction, अब तुम क्या करते हो या जो भी है वो कैसे दे पाओगे बेस्ट तरीके से, राइट। तो your elevator pitch is something like that कि भाई very short crisp में कि hi, I am Abhishek, I am working for 8+ years and I do research testing फलाना ढमकाना जो भी छोटा छोटा, बस उतना, and maybe I have worked with global brands, ये वो, बस उसको आइडिया देने के लिए कि what you do and who are you। ठीक है, next is 2 to 5 best projects only, quantity does not matter here। ठीक है, quantity का कोई भी गेम नहीं है, it's just the quality। अगर 2 भी है it's more than enough, because first is nobody has time to look at all of your 10 projects one by one and then see कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, but 2 project अगर अच्छे हैं that will help you get any job। ठीक है, then one very important thing is about you, again इस elevator pitch का extended version, right? And a very important one again, things you do outside of work। मतलब you know that we are hiring a designer, but good companies will not just hire you for design। ठीक है, किसी भी अच्छे कंपनी में जाओगे there will always be a cultural round। ठीक है, तो वहाँ पे वो ये देखते हैं कि तुम के अलावा क्या कर सकते हो, राइट। तो इट्स नॉट कि जस्ट मेरे को फिग्मा आता है, मेरे को रिसर्च आता है, टेस्टिंग आता है या कुछ भी है, बट उसके अलावा क्या करते हो। तो फॉर सम पीपल इट कैन बी म्यूजिक, फॉर सम पीपल इट कैन बी आर्ट, फॉर सम इट कैन बी स्केचिंग, फॉर सम इट कैन बी वॉलंटियरिंग वर्क आउटसाइड, सोशल सर्विस, कुछ भी हो सकता है। सो इट शोज कि तुम एक्चुअली कुछ और भी करते हो एंड यू हैव समथिंग डाइवर्स टू थिंक अबाउट। मतलब ये नहीं है कि तुम बस खाली जॉब करोगे और घर जाके सो जाओगे, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, सो योर पर्सनैलिटी इज समथिंग दैट शुड बी कन्वेड थ्रू योर एंटायर पोर्टफोलियो कि भाई मैं इस तरीके का बंदा हूँ, आई नो ऑल ऑफ दीज स्किल्स and I am capable of doing all of these। ठीक है, तो I think एक केस स्टडी को क्विकली we'll just go through कि कैसा है ना। This is something that मतलब I personally like। ठीक है, ये एक वेबसाइट है of one designer called Mehak। She was at Deloitte पहले। So this is what I was talking about कि भाई an elevator pitch, something like that कि I am product designer, blending emotions, ये वो, creating impactful solution for B2B, SaaS, all of those, ये blah blah blah। Previously worked with Deloitte, ये Onimus जो भी है। ठीक है, so a small introduction कि मैं क्या करता हूँ, क्या क्या करती हूँ, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली कि भाई ब्रांड्स आई वर्क विद, वॉलमार्ट हो गया, CVS, जो भी इनका काम आ गया, एंड अदर प्रोजेक्ट्स। फिर अबाउट इज डेफिनेटली देयर, कुछ प्ले व्हाट यू डू आउटसाइड ऑफ योर वर्क, वो आ गया, एंड योर रेज्यूमे। वेरी सिंपल, बट नाउ लेट्स लुक एट द केस स्टडी। एक बार केस स्टडी देखते हैं कि हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, सो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, शोइंग द सोल्यूशन कि हम इस पूरे उसमें क्या कर रहे हैं। हम जेन ज़ीज एंगेजमेंट विद CNN बढ़ा रहे हैं। सो दिस इज अ केस स्टडी फॉर CNN
for increasing the Gen Z's engagement, right? This here is the final screen or maybe the final output जो बताता है कि भाई हमने ये किया था. So now if I am looking coming here तो मेरे को एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि ओके now let me see कि क्या हुआ. ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन कि क्लाइंट कौन था, मैंने क्या क्या किया, टीम में क्या था, टूल्स कौन से यूज करे, ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर. वेरी गुड थिंग टू शोकेस प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, राइट? तो शोकेसिंग प्रॉब्लम, शोकेसिंग सोल्यूशन साइड बाय साइड राइट अवे, सो दैट मेरे को समझ में आ जाए कि यार क्या कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे केस स्टडी का. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपना वीडियो डाल दिया है. अगेन इम्पैक्ट, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं आया, इट्स जस्ट अभी शी इज लेटिंग अस नो कि मैंने करा क्या क्या है इस प्रोजेक्ट. ठीक है, कि 4% 4x मोर ट्रैक्शन हो गया, व्यूज बढ़ गए, ये सब हो गया, वेबसाइट व्यूज बढ़ा दिए. नाउ कम्स द एंटायर प्रोसेस. यहाँ पे रिसर्च है, ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव रियल पिक्चर्स. ठीक है, सारी चीजें एंड एवरीथिंग वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कि मैं अगर स्कैन करूंगा तो आई विल बी एबल टू स्कैन इट प्रॉपर्ली, राइट? फिर इनसाइट्स ऑन पॉलिसी, मतलब यही सब रिसर्च से क्या इनसाइट्स निकले, ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, इंटरव्यूज लिए टेस्टिंग के लिए, एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट. अगेन फाइनल प्रोडक्ट में क्या क्या है, शोकेसिंग ऑल द की थिंग्स, है ना? थोड़ा सा और उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट दे हैव डन. फिर अगेन बैक टू द इम्पैक्ट, तो कंप्लीटिंग दैट सर्कल कि भाई कैसे करके हमने क्या किया, एंड दैट्स इट. ठीक है, खत्म. अब नाउ बिकॉज सिंस शी इज अ सीनियर वन, तो उसने लर्निंग्स एंड रिफ्लेक्शंस नहीं लिखे हैं, बट सिंस वी माइट बी इन आवर अर्ली करियर, वी कैन शोकेस कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, या फिर क्या गलतियां करी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ठीक, एक और दिखा देता हूँ मैं. वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑफ शोकेसिंग. सो अगेन यहाँ पे सेम चीज, हाउ टू इंक्रीज लोन एप्लीकेशंस एंड कन्वर्जन रेट. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक स्मॉल माइक्रो इंटरेक्शन लगा दिया जस्ट टू शोकेस द फाइनल प्रोडक्ट. एक बहुत ही अच्छा addition to a case study is this TLDR, like a quick summary of the entire case study, so that अगर तुम्हारे पास कम टाइम है तुम पढ़ो ये कि हमने क्या किया, कि हमने रीडिजाइन किया नवीज पर्सनल लोन एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड आउटकम्स ये थे, सॉल्यूशंस हाईलाइट कर दिए मेजर, दैट्स इट, सो दैट आई नो कि ठीक है व्हाट यू डिड. फिर उसके बाद सिमिलरली भाई व्हाट ओवरऑल ये सब हो रहा था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये रहा, ये सब इनके पर्सोनाज हैं, रिसर्च है, विजन है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ऑल ऑफ द मेथड्स दैट आर देयर, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द एंटायर प्रोसेस, एक एक सेक्शन को लेके, राइट? सो वन गुड थिंग कि शोकेसिंग द फेलियर्स. ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने बताया कि यार इवन आफ्टर दिस आइटरेशन इट फेल्ड, है ना, एंड देयर वाज एक्सपेक्ट लाइक अभी भी देयर वाज ड्रॉप ऑफ. सो अगेन फिर रेक्टिफाई करके मिस्टेक्स को, एंड देन दे मूव अगेन, एंड लास्टली एंडिंग इट विद ओवरऑल बिजनेस इम्पैक्ट. ठीक है, लुक्स गुड. To be a better designer, just 2-3 very essential things, very non-technical again, कुछ भी technical नहीं रहेगा, right? So one is definitely to stay curious, because that's where you actually learn a lot of things. ठीक है, you know, you go find out and you grow. Empathy, yes, definitely important. हम लोग बोलते रहते हैं कि एम्पैथी करनी है, बट प्रैक्टिसिंग इट इन रियल लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन ऑब्जर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऑब्जर्विंग
anything on social media या websites or application, but observe the things around you. ठीक है, छोटी छोटी चीजें. If you see कि why there is a curve here, you should be able to observe that. ठीक है, कि बाकियों में नहीं है, यहाँ पे ऐसा कर्व है ना. तो ऑब्जर्वेशन, कहीं पे भी कुछ भी है, you should be very observant, क्योंकि we actually are building our library. तो अपना माइंड इज लाइक अ लाइब्रेरी, जहाँ पे जितना इंफॉर्मेशन स्टोर होगा वो उतना ही इंक्रीज होगी उसकी कैपेसिटी, राइट. फिर प्रैक्टिस, डू द सेम थिंग अगेन 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 अगेन, एंड दैट इज एक्चुअली दैट विल मेक यू बेटर, नॉट परफेक्ट एटलीस्ट बट बेटर. ठीक है, तो वो एक चीज करते रहो बार बार. इफ यू आर लर्निंग समथिंग ऑन फिग्मा, मेक इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. क्रिंज इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, बिकॉज पहले सब कुछ क्रिंज ही होता है, लाइक एवरीथिंग इज क्रिंज इन द बिगिनिंग, बट एक बार जब बनने लगता है, व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू स्टार्ट मेकिंग इट, इट इम्प्रूव्स, राइट. इफ यू विल सी योर फर्स्ट डिजाइंस, यू विल फील लाइक कि अरे ये तो बहुत ही बेकार था, है ना, एंड दैट शोज योर ग्रोथ. फिर ऑलवेज tell that story. ठीक है, as designers it's very important to be that storyteller, okay, because you have to convince a lot of people, you have to sell your story. So it's very important. And very last and the most important thing is you have to learn to sell. ठीक है, so तुमको अपना डिजाइन बेचना है, अपने आप को बेचना है, राइट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. यू हैव टू टेल योर प्रोफाइल टू द इंटरव्यूअर. I think with this, just be weird. मतलब nothing not being weird, because we are designers, we have to be that way. We are not developers जिनको straight सोचना है ना. We don't have to think in codes and syntax, so we have to be weird a little, right. And thank you for this. If कोई questions है, let's have some questions if there are, otherwise we'll go have lunch. मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो Yes. क्वेश्चंस है केस स्टडी से रिलेटेड. मतलब मुझे इम्प्रूव करना है अपना स्टोरी टेलिंग. जैसे अभी क्या हो रहा है कि पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में बहुत सारा पेजेस क्रिएट हो जा रहा है. मतलब डिजाइन प्रोसेस को अगर फॉलो करने जाओगे तो लंबा चौड़ा की स्टडी बन जाएगा. ठीक है, तो उतना टाइम तो होता नहीं है रिक्रूटर के पास. तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जिससे इम्प्रूव किया जा सकता है? नंबर 1 क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कितना फोकस करना चाहिए डिजाइन करना स्क्रीन्स पे, और कितना टाइम बिताना चाहिए रिसर्च करने पे, एम्पैथाइज करने पे, और कितना इम्पोर्टेंट है यूजर इंटरव्यू करना ताकि प्रॉब्लम को ठीक से समझ के क्रिएट किया जा सके. ये 2 क्वेश्चंस है मेरे. ओके, तो पहला तो ये है कि क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, कितना नहीं दिखाना चाहिए, राइट. तो ऑब्वियसली जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है वो रखना ज़रूरी है एंड दिखाना भी ज़रूरी है, बट इस एक्सटेंट तक दिखाना ज़रूरी है, दैट इज समथिंग दैट कम्स ऑन टू अस कि हमें, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यूजर इंटरव्यू, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, हर जैसे 5 लोगों का इंटरव्यू किए, 5 लोगों इंटरव्यू के क्वेश्चन, उनके आंसर्स, एक एक चीज वहां पे दिखा रहे हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, मेरे को एज अ रिक्रूटर क्या चाहिए कि तुमने यूजर इंटरव्यू किया, तुमने मुझे बता दिया कि 5 लोगों से करा है, एंड नाउ टेल मी व्हाट यू गॉट आउट ऑफ इट. मतलब वहां से उस रिसर्च के इनसाइट्स क्या है, वहां पे तुमने क्या ऑब्जर्व किया और उनसे क्या इनसाइट्स मिले. अगर उतना लिख दोगे मुझे उससे आइडिया मिल जाएगा कि तुमने क्या किया, राइट. तो
जस्ट ये देखना है कि कौन से पार्ट में हमें कितना इन्फॉर्मेशन दिखाने से हमारा मैसेज कन्वे होना चाहिए। बस अपना एंड गोल इज टू कन्वे दैट मैसेज। अगर हमने यूजर इंटरव्यू किया है तो बस काफी है, अगर हमने ऑब्जर्वेशन और इनसाइट्स दिखा दिए बहुत है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो अगर हमने 5 कॉम्पिटिटर्स के एनालिसिस किए हैं तो उन 5 में से जरूरी नहीं है कि हमें, अगर हमने 25 चीजें निकाली हैं तो 25 ही दिखानी है। उस 25 में से 2 या 3 या 4 जो की ऑब्जर्वेशन है वो निकाल के दिखाते हैं, राइट। सो फिल्टर करना जरूरी है फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन। अगर इफ यू स्टिल वांट कि यार मेरा ना बहुत बड़ा केस स्टडी है, मेरे को सब कुछ दिखाना है, ठीक है, अगर ये है कि यार नहीं मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरे को सब दिखाना चाहिए, तो 2 वर्जन बनाओ ऑलवेज। एक शॉर्टर वर्जन गुड आइडिया, शोकेसेस की ऊपर का, एंड एक लॉन्गर वर्जन जिसमें एक चीज रखो, एंड विद दैट शॉर्टर वर्जन आल्सो हैव अ लिंक कि भाई अगर तुमको बड़ा केस स्टडी देखना है पूरा डिटेल तो तुम इस पे क्लिक करके तुम मेरे को यहाँ देख लो, राइट। सो दैट कि अगर किसी रिक्रूटर को लगे यार ये तो बहुत छोटा है, तो एटलीस्ट वो वहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करके देख लेगा कि भाई इसने बहुत ज्यादा डेप्थ में रिसर्च किया है, टेस्टिंग किया है, सब कुछ किया है, राइट। तो फिल्टर आउट करना है, दैट इज वेयर द स्टोरी टेलिंग पार्ट कम्स इन। तो लुक और स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करने के लिए लुक एट ऑल लाइक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, ऑब्जर्व करो, लोगों के केस स्टडीज देखो कि वो लोग कैसे दिखा रहे हैं। जैसे अभी हमने एक देखा महक वाला, सो उसने भी ऐसा नहीं है कि उसने रिसर्च नहीं किया होगा, उसने 4-5 महीने रिसर्च किया होगा, राइट, बट उसने मेजर चीजें दिखा दी है, मेजर पिक्चर्स लगा दिए, मेजर स्टैट्स दिखा दिए, विच इज कन्वेइंग द मैसेज कि हाँ आपने इतना सब किया था, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि यू नो, ठीक है। तो आई थिंक फिल्टर आउट करना, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर। जब आप चीजें ऑब्जर्व करोगे कि भाई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो देयर इज अ वे आउट। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एज अ डिजाइनर कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए डिजाइन पे इनिशियली, है ना, और कितना स्पेंड करना चाहिए रिसर्च पे, प्रॉब्लम को एम्पैथाइज करने को, है ना, यूजर के साथ इंटरव्यू करना, मतलब डायरेक्ट जंप करना नहीं चाहिए डायरेक्टली, वो कहना है मेरा। ओके, तो इधर ना 2 तरीके के आंसर है मेरे पास। एक तो ये है कि हम हमारा जॉब रोल क्या जॉब रोल पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूआई डिजाइन पे जा रहा हूँ, मतलब आई एम अप्लाइंग टू बिकम अ यूआई डिजाइनर, ठीक है, तो मेरा यूएक्स पे उतना फोकस नहीं होगा। तब मैं अगर मतलब इनिशियल अगर 10-20% भी रिसर्च करके और यूआई पे आ जाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा, राइट। अगर मैं यूएक्स डिजाइनर के लिए जा रहा हूँ वेरिन मेरा फोकस यूएक्स पे है, तब मुझे एक्चुअली में मैक्सिमम टाइम अपना रिसर्च पे देना पड़ेगा, लाइक एटलीस्ट 60% टाइम, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास मान लो हफ्ता भर है कंप्लीट करने का, 7 दिन है, तो 7 में से तुमको कम से कम 3 से 4 दिन देने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड एंड डू द रिसर्च अच्छे से, बिकॉज तब यू विल हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा प्रॉब्लम क्या है एंड मैं उस पर कैसे सोल्यूशन पे लैंड करूंगा, एंड देन फोकस ऑन द विजुअल पार्ट, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज करने हैं और हर केस स्टडी या फिर हर प्रोजेक्ट पे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि मैं सारे स्टेप्स फॉलो करता हूँ, बिकॉज इंडस्ट्री में वैसा नहीं होता है। एंड जो लोग भी हायर कर रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि यार हम सारे स्टेप्स तो फॉलो नहीं करेंगे ना, तो वो ढूंढते भी नहीं है कि आप सारे स्टेप्स फॉलो करो। इट्स जस्ट दैट कि आपको जो रिक्वायर्ड था इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने वो किया। अगर यूजर इंटरव्यू में लगता है कि तुमको यूजर इंटरव्यू से अच्छी रिसर्च इनसाइट्स मिलेंगी तो हम यूजर इंटरव्यू करेंगे, नहीं तो हम सर्वे वगैरह भेज के या फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके या फिर कोई भी और सेकेंडरी रिसर्च करके काम चला लेंगे। तो वो अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि यार सारे प्रोसेसेस एक ही केस स्टडी में दिखाना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है और कोई ढूंढ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो बस जितना इम्पोर्टेंट है
उनको लगता है कि अगर सर्वे करने से मेरे को काफी इंसाइट मिल जाएगा तो मैं बस सर्वे डाल दूंगा। अगर मेरे को लगता है कि यार गूगल रिव्यूज और इन सब से जाके मुझे काफी हेल्प मिल जाएगी तो मैं वो कर दूंगा, बस काफी है। या फिर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से मेरा काम हो जा रहा है तो मैं वो करके छोड़ दूंगा। ठीक है, आंसर्स गॉट इट। थैंक यू सो मच। गुड टू रैप अप। ऑल्सो थैंक यू अनुष्का इस इवेंट के लिए और वर्कशॉप के लिए। मतलब सच में मजा आ गया और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। स्पेशली मुझे डायरेक्शन मिल पाया और मैं सोच रहा था कि यार मेरी लाइफ में डाउनफॉल्स हो रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। थैंक यू बट मुझे बाद में पता चला कि यार ये सबके साथ ऐसा है, ठीक है। तो Thank you, Abhishek, for the valuable insights, and thank you everyone for joining Design Age. Have a great evening. थैंक यू। थैंक यू अनुष्का, एवरीवन, थैंक यू। बाय।